घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय की रक्षा के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का अभ्यास करें। अपनी हाथों को नियमित रूप से धोएं। जब तक आवश्यक ना हो, सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। यूएई कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ये समय आपके योगदान का है। इस मुहिम में देश का सहयोग करें। हम सब इसमें एक साथ हैं। यूएई हमारा घर जैसा है और आओ इस कठिन परिस्थिति में हम मिलकर अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा करें। Hello students, Chemical Kinetic Lecture 5 टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शंस एंड रेट लॉ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल होने वाला है क्योंकि दुनिया में वही आगे बढ़ते हैं जो सराउंडिंग में चेंजेस को नोटिफाई करते हैं और एनालाइज करके कंक्लूजन ड्रा करते हैं और मुकाम हासिल करते हैं। तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि जितने भी सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं क्या आपने कभी नोटिफाई किया है कि क्यों वो स्लो और फास्ट होते हैं? यदि नहीं किया है तो करना शुरू करिए यदि कुछ बनना चाहते हैं। ऐसे ही दो साइंटिस्ट थे वुडवर्ड्स एंड वेस इन 1864 they notified that why the changes are slow and fast. What happened to the rate of reaction if the concentration of the reactant is decreases or increases? After studying the various phenomenon, they had given a relationship between rate of reactions and the molar concentration of the reactant. And the relationship was rate of reaction directly proportional to the molar concentration of the reactant. To write this relationship into mathematical expression, we are just taking a hypothetical reaction. AA plus BB changes to product. Then rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant A raised to the power of A multiply molar concentration of reactant B raised to the power of B, where A and B are the stoichiometric coefficient of a balanced chemical equation. Keep in mind where A and B are the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation, and this equation 1 is known as law of mass action. The equation 1 is known as law of mass actions. With the passage of time, most of the scientists studied the relationship between rate of reactions and the molar concentration of the reactant. And they had given unbelievable results which led to the modification of law of mass action. And the modification was rate of reaction is directly proportional to A raised to power x and B raised to power y, where x and y are the experimental value. Keep in mind where x and y are the experimental value. These are not the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. And this equation 2 is called rate equation or rate law. Or you can say that the modification of law of mass action is called rate equations or rate law. When we compare these two equations, then we can write two cases. Case 1, x is equal to A and y is equal to V. Case 2, x not equal to A and y not equal to V. So in case 1, when x equal to A and y equal to V, the reaction is a simple reaction or elementary reaction. And when case 2, x not equal to A, y not equal to V, then the reaction is a complex reaction. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? इन दोनों को समझने के लिए आप दो एक्सपेरिमेंट करेंगे और उन दोनों एक्सपेरिमेंट में रिएक्टेंट सॉलिड होगा और प्रोडक्ट गैस होगा। मींस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सॉलिड है और प्रोडक्ट भी
गैस है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी रिएक्टेंट सॉलिड है और प्रोडक्ट भी गैस है। अब मान के चलिए इसमें आपने कि फर्स्ट एग्जांपल में आपने कैम्फर ले लिया। अब कैम्फर किस में चला जाता है? डायरेक्टली गैस में। और दूसरे में केस ले लीजिए कि अपने सॉलिड आइस लिए, तो आइस फर्स्ट किस में जाएगी? लिक्विड में, और फिर किस में जाएगी? गैस में। अब ध्यान से इन दोनों रिएक्शन को देखें तो ये 1 स्टेप में अकर हो रहा है और ये 2 स्टेप में अकर हो रहा है। तो आप समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है अकर इन 1 स्टेप, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है अकर मोर देन 1 स्टेप, मींस मल्टी स्टेप रिएक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शंस एंड रेट लॉ। अब आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया और आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शंस एंड रेट लॉ? बड़ा सिंपल है। लॉ ऑफ मास एक्शन केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन को लगाया जाता है, जबकि रेट लॉ कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों को लग सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल है, मींस देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर दिस लॉज, और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। और लास्ट जो डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूं वो है इनकी डेफिनेशन। कोई पूछे व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, तो देखिए क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। और यदि कोई पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ, तो आंसर होगा rate of reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant raised to the power of their experimental value. So this is end of the topic. Thank you. Have a nice time.